Hi friends, here I am back again with another makeover. Again, I'll be doing my voiceover in English and in Hindi. So ये अभी हम एक मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं. ये भी एक वीडियो शूट के लिए था. पहले मैंने कलर करेक्टर किया एंड देन अभी उसके ऊपर मैं FS36 का TV स्टिक लगा रही हूँ. So we're doing like a video for like we're doing like a makeup for a video shoot. I added some color corrector first. Then I'm going over with the TV paint stick, Kryollin TV paint stick FS36 all around her face. So I'm just using my brush all around and like applying it over for the first coat. So अभी पहला लेयर मैंने लगाया है FS36 TV पेंट स्टिक का ब्रश के साथ और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ. And after I apply with my brush, I am going to blend all this with my damp beauty blender. That will give a very soft and a flawless look. ये जो ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर है इसके साथ आप डैबिंग मोशन के साथ इसको पूरा ब्लेंड कीजिएगा. ये आप देखेंगे कि ये FS36 के अंदर हल्का सा ऑरेंजी टोन आता है जो कि ये आपके स्किन टोन्स में जो भी डिस्कलरेशन होती है उसको ये बैलेंस कर देगा. और फिर इसके ऊपर मैं FS38 का नंबर वाला स्टिक लगाऊंगी. So the number that I'm using first is the FS36, which has a little bit of the warmer tone. What the warmer tone it does is that it kind of conceals the discoloration and any dark pigments that you have. And after I have blended this, the warmer tone TV stick, I'm going to go with another shade, which is the lighter shade, and that is FS38. And that way, if you have any discoloration, having a little bit of the warmer darker base at the first layer will kind of camouflage all the flawless. So अभी मैंने इनके नेक पे भी लगाया है, इनके नेक पे वही वाला शेड लगाया है FS36 वाला, क्योंकि इनके थोड़े से डार्क सर्कल्स भी थे तो उन सबको ब्लेंड किया. Now you see I'm going back with a lighter shade. I'm going with FS38 with a little bit of ivory so that we can have a little bit of brightness around her eyes. So मैंने ivory और FS38 को दोनों मिक्स करके लगाया है. पहले मैंने सोचा खाली FS38 लगाऊं तो मुझे लगा कि उसमें इतनी ब्राइटनेस नहीं आ रही थी. सो आई हैड टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ द आइवरी सो दैट थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस आए. एंड देन इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा फाउंडेशन जो है वो आपका टी जोन और अंडर द आई हाईलाइट भी हो जाएगा और आपकी कवरेज भी बहुत अच्छी आ जाएगी एंड आपकी स्किन विल नॉट लुक डार्क. सो विद हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस लाइटर शेड व्हाट इट डज इज दैट इट balances off the first foundation that we used, which was a little bit more warmer, and this kind of gives a nicer brighter finish and it doesn't give you that kind of the like the warmer orangey tone which we use as the first foundation. तो इन सबको अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिएगा. इसके बाद मेक श्योर के आइज़ ऊपर ही हों. आप सेटिंग पाउडर विद द पाउडर पफ के साथ आप अंडर आइज़ को सेट करें. जस्ट मेक श्योर योर आइज़ आर नॉट like you're not looking down and you're not like talking and then trying to set your foundation, because that way whatever the crease is there is just going to get locked. So make sure that your model or your bride is like looking up constantly while you are setting the face, especially the under eye with the setting powder. तो ये मैंने सेटिंग पाउडर यूज़ किया है. मैंने ये लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है. सो मेक श्योर कि आप जब भी कंसीलर या फाउंडेशन लगाते हैं तो जो भी आपकी ब्राइड हो वो आइज़ के ऊपर ही करके देखें, क्योंकि जब वो नीचे देखेंगे या बातें करेंगे तो वो सारा कंसीलर क्रीज़ हो जाएगा. अगर क्रीज़ हो जाए तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ पहले उसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से पहले उसको आप ब्लेंड करें, फिर उसको ये सेट करें. And I'm just putting another layer of this powder so that we were in a rush for the video, so I'm just going straight in with that same ivory concealer, and I'm going in around her eyelids. So ये मैंने ivory वाला TV पेंट स्टिक लिया है और मैं इनके पूरे लिड्स पे लगा रही हूँ. एंड नीचे जो आपको पाउडर नज़र आ रहा है वो बेसिकली इसलिए लगाया है कि जो भी मैं आई शेडो लगाऊंगी वो नीचे अगर गिरे तो उनके जो हमारा फाउंडेशन है वो ख़राब ना हो. सो while I have applied the TV paint stick ivory on her lids, I am just buffing it out, making it even so that all the concealer is nicely blended. So ये buffing brush के साथ आप इसको अच्छी तरह blend कर लें. Make sure कि सारे आपके edges वगैरह सारे वो smooth हो.
एंड बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी योर मेन बेस। और हल्का सा इसमें अभी आपने वही सेटिंग पाउडर लेके तो इसको सेट करें। जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ द सेटिंग पाउडर एंड यूज़ द सेम ब्रश एंड जस्ट kind of tap it on top so that it kind of blends in। अभी मैंने एक रस्टी कलर का ये आई शेडो लिया है। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक द मेन बेस, लाइक द ट्रांजिशनल शेड। एंड इसको आप मेनली आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरह ब्लेंड करके लगाएं। ये आप देखेंगे मैंने सेकेंड आई पे भी स्टार्ट कर लिया है एंड आप इसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स करेंगे। सी आई एम गोइंग बैक नाउ अगेन फॉर द सेकेंड टाइम जस्ट टू मेक श्योर द पिगमेंट्स आर नाइसली लाइक सैचुरेटेड। क्योंकि आप जब एक दफ़ा करके करोगे तो आपका कलर इवनली नहीं आएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि 2 या 3 दफ़ा आप उसके ऊपर वही शेड्स दोबारा से लगाएंगे सो दैट इट गिव्स यू अ नाइस like a full different layers of colors because that's going to blend in really nicely। आपका पूरा आई मेकअप की खूबसूरती ही ब्लेंडिंग से आती है। सो द योर ट्रांजिशन शेड इज़ वेरी लाइक important, very very crucial। You have to make sure you at least go 2 or 3 times and you apply it nicely। मैंने अभी ये टार्ट का पैलेट लिया था क्रिसमस में, उनकी सेल थी बहुत अच्छा, उनका डील भी था। तो उन उसमें ये ब्रॉन्जी गोल्ड कलर है लाइक मेटालिक, ये मैंने वो यूज़ किया है। सो आई एम जस्ट गोइंग विथ दिस वाज लाइक अ ब्रॉन्जी काइंड ऑफ गोल्ड कलर फ्रॉम द टार्ट palette that I got during the Christmas। They had like amazing sale at Sephora, so I just grabbed couple of them from there। so इनको आप अच्छी तरह जो गोल्ड को जो है आप ब्लेंड करेंगे। ऊपर लाइक ट्रांजिशन शेड के ऊपर बहुत नहीं जाना क्योंकि मुझे लगा मेरे लेफ़्ट आई पे थोड़ा ऊपर चला गया था। सो आई एम जस्ट गोइंग बैक, दोबारा से वही ट्रांजिशन शेड को थोड़ा सा मैंने डीपन किया है उनके एजेस के। सो आई फेल दैट आई वेंट अ लिटिल बिट हायर ऑन द लेफ्ट आई विद द गोल्ड। सो आई वेंट बैक अगेन विद द ट्रांजिशन कलर एंड मेड इट ब्लेंड अगेन। अभी मैंने थोड़ा सा ये ब्लैक आई शेडो लिया है एंड जस्ट टू गिव अ सॉफ्टर लुक। अभी कोई भी आप आई लाइनर लगाने से पहले अगर थोड़ा सा ये ब्लैक आई शेडो लगाएंगे ना, यू विल सी कि आपका लाइनर बहुत सॉफ्ट आएगा। और अगर आपका आई लाइनर बहुत अच्छा भी नहीं लगता, इफ़ यू नॉट रियली गुड इन अप्लाइंग एंड योर लाइनर इज़ नॉट रियली स्ट्रेट, इफ़ यू अप्लाई दिस ब्लैक आई शेडो you won't be able to see your flaws as much। तो ये ब्लैक आई शेडो आप लाइनर से पहले ज़रूर लगाया करें। इससे जो है ना आजकल बहुत अच्छी लुक आती है। और आपको कोई अगर लाइनर बहुत अच्छा भी नहीं लगाना आता हो, थोड़ा सा लाइक स्ट्रेट ना भी हो, इट वो कवर लाइक हो जाता है आपके ये ब्लैक आई शेडो से। आई एम जस्ट पुटिंग लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर ऑन हर आईज़ एंड अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सारी चीज़ बड़ी ब्लेंडेड हो। और इनकी eyebrows की shape was pretty good। I didn't have to do much with her eyebrows, so I just thought to kind of fill in a little bit। इनके eyebrows जो थे उनकी shape बहुत अच्छी थी, तो बस थोड़ा सा मैंने वो जो जेल पोमेड लेके तो इनका मैंने eyebrows पे हल्का सा जस्ट इनको fill किया है। एंड नाउ आई एम गोइंग इन विद द जेल लाइनर। इंगलॉट का जेल लाइनर मैं लगा रही हूँ एंड यू विल सी दैट आई एम जस्ट स्टॉपिंग राइट वे हर आई इज़ फिनिशिंग, लाइक बिल्कुल यहीं पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, मैं आगे पूरा विंग नहीं कर रही। देन आई टुक अ थिकर ब्रश और उसको मैं स्मज कर रही हूँ। सी आई एम जस्ट स्मजिंग इट आउट विद बिकॉज आई डेंट वांट टू गिव हर like a wing liner। I wanted to give like the smudged eyeliner look। So I finished the gel liner right where her eye finished and then I'm just smudging it and blending it with like a flat brush। अभी दूसरी आई में भी आप देखेंगे बिल्कुल इनका लाइनर मैं वहीं पे फिनिश कर रही हूँ जहाँ पे इनका आई का कॉर्नर बिल्कुल फिनिश किया है। इसको मैं विंग लाइनर नहीं कर रही, लाइक बाहर नहीं खींचना इसको, क्योंकि अगर इसको आप बाहर लेके जाएंगे तो फिर वही ट्रेडिशनल सी लुक आ जाएगी आपकी, वो सॉफ्ट स्मोकी लुक नहीं आएगी। वहीं पे फिनिश करके फिर मैंने ये दोबारा ये एंगल ब्रश लिया एक क्लीन सा और इसको सिर्फ मैंने स्मज किया है ताकि आपकी लाइनर की जो लुक है ना बिल्कुल वो सॉफ्ट, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल वो हार्श लाइन ना लगे। आप बहुत उसको सॉफ्ट स्मोकी करके आपकी आए मगर उसकी जो कलर की डेप्थ है वो भी हो। So you want to make sure you have the black depth on your lash line, right? But you're going to blend it softly so you don't have that harsh winged eyeliner look। अब मैं सिर्फ इनको ब्लेंड कर रही हूँ। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे कॉर्नर्स, सारे आपके जो डिफरेंट शेड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर रहे हों। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अब देखें, लाइक आई एम जस्ट पुटिंग द ब्लैक जेल लाइनर जस्ट अंडर हर
वाटर लाइन, अपर वाटर लाइन। ये देखें, इससे ये नीचे वाला शेड जो होता है ना, ये जो टॉप आई के जो नीचे लगाना है, इससे बहुत अच्छी आपकी लुक आएगी। आप अगर सिर्फ इफ़ यू जस्ट पुट योर लाइनर ये ऊपर और वहाँ आप नीचे नहीं लगाओगे ना, आपकी आइज़ में वो डेप्थ नहीं आएगी। तो इवन इफ़ आप ये थोड़ा सा सिर्फ आइज़ के नीचे लगाएंगे ना, यू विल सी आपके आई मेकअप में बिल्कुल बहुत चेंज आ जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग विद द लैशेज़। मैंने ये 3D मिंक लैशेज़ लिए हैं। वी जस्ट पुटिंग दोस मिंक लैशेज़ देयर टू गिव हर मोर ऑफ दैट dramatic look. You will see, like, when you go with those heavy lashes, even if your liner is not really thick and wing liner, you still get a very nice look. आप ये देखेंगे जब ये आप heavy lashes लगाते हैं ना, ये fluffy mink lashes हैं, 3D mink lashes। अगर आपने अच्छे heavy वाले lashes लगाए हो तो आपको ना वो पूरी wing liner की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप उससे क्या होता है, बहुत ही ना फिर एक हैवी लुक आ जाती है। आई मीन आज के लिए मुझे वो लुक नहीं चाहिए था। अब ये मैंने सिर्फ लाइनर जो लिया है, सिर्फ उसकी वो जो लैश लाइन की एक लाइन होती है उसको सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ। राइट, आई एम जस्ट गोइंग आउट विद दिस जेल लाइनर just to blend in the line of the lash so that her lash line and the gel, it doesn't look separate. So अब just उनके छोटे छोटे से just finishing कर रही हूँ. You just have to make sure if there's any edges that needs to be cleaned up. आई मेकअप में सबसे ज़्यादा होता है आपकी डिटेलिंग. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर ईच एंड एवरी कॉर्नर्स, एवरीथिंग आपकी बहुत अच्छी आपकी डिटेलिंग हो. यू डोंट मिस एनी एजेस आउट, यू डोंट मिस एनी कॉर्नर्स, एंड बोथ द आईज आर टोटली सिमिलर एंड दे आर like symmetrical too, right? So आप इसके बाद जब आई मेकअप हो जाए, you just brush off that powder. जो नीचे पाउडर लगाया था वो फ्लफ़ी ब्रश के साथ उसको आप क्लीन अप कर लें. एंड इसको थोड़ा हमने वो काजल लुक देने के लिए आई एम यूजिंग द जेल लाइनर. और जेल लाइनर लगा के यू मेक श्योर कि आप वही जो रस्ट कलर का जो था आई शेड आप वो लगाएंगे. उससे क्या होगा, आपका वो जो जेल लाइनर है वो बाहर नहीं आएगा और स्मज नहीं होगा. If you put the gel liner in the waterline and you put this eyeshadow like outside how I'm doing it right now, just to give like a nice full blended look, in this way your gel liner will not smudge out. I mean the powder is going to lock it in, so it's not going to bleed out or it's not going to get smudge. और ये आउटर कॉर्नर में हल्का सा मैंने डार्कर कलर का वो जो डार्क ब्राउन वो किया है. पहले ये देखें रस्ट कलर लगाया है मैंने. फर्स्ट आई हैव अप्लाइड द ट्रांजिशन कलर, द रस्ट कलर फर्स्ट, and then I'm going back with a little bit of the darker brown just on the corner, so just to give that same dimension what I have done on top. जो ऊपर किया है ना आपने, जो शेडिंग किया है, जो लेयरिंग की है, उसी तरह आपने नीचे भी वही करना है. सी मैंने वही जो ब्लैक वाला ब्रश लिया था, हल्का सा नीचे मैं उनको ब्लेंड भी कर रही हूँ ताकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो आपका है वो एक जैसा लगे. अब इनका हल्का सा इनके माशाल्लाह हर फेस हैज़ रियली नाइस कंटूर. आई डिडंट हैव टू गो विद एनी हैवी कंटूर. अब इनके आई से पानी भी निकल रहा था, सो जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि इनका फाउंडेशन रूइन ना हो. तो बस इनके पहले मैंने हल्का सा सिर्फ पाउडर लाइक ब्रॉन्जी कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ इनका मैंने कॉन्टूर किया. एंड देन इनका मैंने बड़ा आई थिंक नार्स का मैंने यूज़ किया है इन पे ब्लश. सो इनके नोज़ पे भी यू जस्ट गो विद अ वेरी लाइट काइंड ऑफ contour because she had an amazing features. Her jaw lines, her nose were very sharp, so I didn't want to make it more sharp because she was wearing like a white sari and we were going with a very soft look. Like इनके white sari था, इनकी jewelry भी थी, तो इनको बहुत इनको चाहिए था कि थोड़ी इनकी soft look ही हो. That's why हमने बहुत heavy cream contour नहीं किया. So basically after the foundation you have to do a little bit of contour, add a little bit of bronzer so you bring back the dimension, right? So ये मैंने अभी ये नार्स का पाउडर वाला ब्लश यूज़ किया है इन पे. और द मेन जो आपका मकसद होता है कॉन्टूर करने का वो ये होता है जब लाइक फाउंडेशन लगाने के बाद आपका फेस बहुत ब्लैंक और फ्लैट हो जाता है. सो जस्ट यू हैव टू ब्रिंग बैक द डायमेंशन, राइट, कि आपके फीचर्स थोड़े से एनहेंस हो, आपका फेस इतना फ्लैट ना लगे. सो मैंने इनका हाइलाइटर लगाया और इनके आइज़, इनके लिप्स के लिए इन्होंने कहा था कि बिल्कुल एक न्यूड सा लिप्स चाहिए. सो ये हल्का सा ये सफोरा का लिप कलर है मैट वाला, वो हमने एज एन आउटलाइन लगाया. और फिर इनको जो फिनिश किया था मैंने ये फैंटी ब्यूटी का यूज़ किया था. इनका लिप ग्लॉस जो कि आई थिंक इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट सा है और हल्का सा ग्लिटर है उसके अंदर. ये फैंटी ब्यूटी का हमने इस पर लिप ग्लॉस लगाया. सो बेसिकली पूरे लिप्स पे मैंने
लिपस्टिक नहीं लगाया, जस्ट लाइक आउटलाइन विद पेंसिल एंड आउटलाइन विद द ब्राउन एंड जस्ट इनसाइड आई ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दैट ग्लॉस, दैट्स इट। क्योंकि ग्लॉस से जो है ना थोड़ी यूथफुल लुक भी आती है, यू लुक मोर मॉडर्न, यू लुक मोर ट्रेंडी एंड यू हैव अ मोर लाइक अ यंगर यूथफुल लुक विद द ग्लॉस। बस इनके जो सब फिनिशिंग टचेस किए हैं इनके फेस पे, मेकअप तो इनका लाइक हो गया था, जिस मैं देख रही थी कि कैमरा के थ्रू मैं देख रही थी कि कुछ कहीं से ब्लेंडिंग तो नहीं करने वाली, ये सब चीज़ इवन हो। You just have to make sure you look through the camera and you get to see if you left any space or you need to go back and fix anything. And oh yep, and then I forgot कि oh मैंने तो mascara भी नहीं लगाया, and then I had to go back and put in the mascara to kind of blend her lashes with the mink lashes. तो mascara भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके lashes दूसरे lashes के साथ blend हो जाएं, और आपके वो जब आप वीडियोज़ या पिक्चर्स लें तो दो लेयर्स ऑफ लैशेस सेपरेटली नज़र ना आए। एंड दैट्स इट, आप देखेंगे। आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आ गया। ये इनके बाल की इतने सॉफ्ट कर्ल्स किए थे और इनकी ज्वेलरी भी थी। आई होप आपको पसंद आए हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड होपफुली इंशाल्लाह आई विल कम बैक विद मोर वीडियोज़ विद यू। आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।